Hi everyone, welcome to Learn for Exam. I'm Atre Roy, and in this video I'm going to talk about mock scores. Now a lot of you have taken your first mock. Now for people who have got a good score, we'll discuss about that as well, but for people who are not being able to get a good score, or let's say they've taken 2-3 mocks and all 3 mocks scores have been almost synonymous, almost similar, we are going to do that, right? So we are going to talk about where are you going wrong and what strategy should you follow to take all these mocks. So let's start. Now this is a figure what I have made, according to a LOD2 mock, that is a moderate mock. Now if you take a moderate mock, let's see how you fare and in which zone are you in according to these levels, right? Now level 0 is where you have not prepared anything. You don't know anything about the concepts, you don't know anything about formulas, anything much, not much about syllabus and stuff, right? You have not started your preparations, or let's say just started your preparations. The baseline mock can be considered this one, right? So you get 15 marks in, let's say, verbal, 20 in LRDI and 15 in quants. If you get these sorts of marks, you are in the 0 level, that right? Next, if you get around 20 in verbal, 25 in LRDI and 20 in quants, then you can call yourself a beginner कि हाँ मुझको थोड़ा सा कुछ भी आता है. You can see the differences are not that much, right? Now point here is the baseline mock or the basic mock without any preparation that you take, like what questions come in verbal? Reading comprehension, right? If you are not good comprehending passages, you don't have to learn about passages. You are not good comprehending passages ताकि आप 5 question out of 34 questions नहीं कर पाओ. So that's a point of stress. ठीक है? Logical reasoning. This is completely logical. ये आपको कोई सिखा नहीं सकता है, right? So इसमें भी doing 6-7 questions is basic, and quant के लिए भी I've kept 5 questions only. Now this is the most basic level. उसको आप थोड़ा एक हफ्ता पढ़ोगे या 2 हफ्ता पढ़ोगे तो definitely you can attempt +2 questions in each, right? Because now you know some concepts. Right, so this beginner level is nothing but 2 weeks or 3 weeks into your preparation, या फिर let's say 4 weeks or a month of preparation, तब आप beginner level पे जाते हो. Now what about a walker? Now you have started walking or perfectly walking. You get around 10 questions in verbal, around another 11 questions in LRDI and 11 questions in quant. Now this is an area जहाँ पे आप around 95 score कर रहे हो. You can say that yes, I'm walking now. It's not a good score obviously, but हाँ I'm now preparing अच्छे से, ठीक है? क्योंकि अभी let's say, so this should come after 2 months of your preparation. If you are getting 95 marks, around 95 marks, 100 marks, you are at a good stage, at least after 2 months of preparation, ठीक है? यहाँ पे what you need to focus is to practice more and more, complete more of your syllabus and then move into the next level. Now what is the next level? The next level is getting around 45 in verbal, 40 plus in LRDI and 45 plus in quants. Around 130 marks if you add this up, 130 marks के around आएगा, keeping in mind all the 3 sections are medium difficulty level, ठीक है? So verbal is also medium, quant is also medium, LRDI वैसे medium होता नहीं है, around difficult level, and this you can consider this to be the difficult level if you are scoring around 40. Now this 130 again is on a mock that is of medium difficulty level. The marks that you should get would change according to the difficult level of the mock, but if you are getting 130 abhi, you are at a very good position. Right? If you're getting 130 marks right now, you're at a very good position. So your strategy should be moving from this to the second zone in around 2 weeks, right? 2 or 3 weeks, and then taking a month or a month and a half to move into the next, and then again, around a month to move into the next. Everything is structured and you have to follow this in a much diligent way. Now what are the very general ज्ञान जो लोग आपको देते हैं? बोलेंगे कि क्वांट का पेपर है, एलआरडीआई का पेपर है, 4 सेट सॉल्व कर लेना. क्वांट का पेपर है, 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आराम से निकल जाएगा. फिर पीपल वुड टेल यू कि हाँ सारे इजी क्वेश्चन सॉल्व करने ला, जो अरिथमेटिक के क्वेश्चन है वो ज़्यादा सॉल्व करना, ठीक है? देन सॉल्व जो लास्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो इजी क्वेश्चन होते हैं, उनको पहले सॉल्व करो. देन कैट में जा रहा है बैठने बेटा, तो एक काम करना है, 130 मार्क लेके चलना दिमाग पे, 130 लाना है. अगर 130 लाता है पक्का से पक्का एम का कॉल आ जाएगा. so, ये सब जो चीज़ है ना, दीज आर अननेसेसरी हैजर्ड्स इन टू योर हेड. ये आप अपने दिमाग से अभी निकाल दो. वॉट यू नीड टू फोकस,
are in these things. What are the major things that you need to focus? First, take every mock, full mock जो आप लेते हो उसको एक फुल मॉक की तरह मत देखो. टेक इट एज 3 सेक्शनल्स. एक अगर गंदा जाता है या बहुत अच्छा जाता है उसका इफेक्ट दूसरे पे नहीं पड़ना चाहिए. ठीक है. एंश्योर दैट ऑल द 3 सेक्शंस आर टेकन डिफरेंट विद अ डिफरेंट एटीट्यूड, विद अ न्यू एटीट्यूड. ठीक है. एंड बैक टू बैक लेना पड़ेगा बिकॉज ऑब्वियसली अ मॉक वोंट गिव यू दैट time gap between the sections, right? So just take it as 3 sections. Do not take it as as a full mock. Then the first 2 to 3 minutes you should scout the paper. ना स्काउटिंग का मतलब ये होता है कि आपको 2-3 मिनट या फिर लेट्स से 5 मिनट तक पता चल जाना चाहिए कि मेरा जो क्वेश्चन है वो इजी है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है पेपर में वो इजी है, डिफिकल्ट है या मीडियम है. ऑब्वियसली वर्बल अगर इजी होता है ऐसा मतलब नहीं बनता है कि क्वांट भी इजी होगा, राइट? सो फॉर एवरी सेक्शन फर्स्ट 2-3-4 मिनट्स you should take to understand the level of difficulty of the paper and then assume and then calculate कि हाँ these should be the ideal number of attempts. ठीक है. just to keep a number at the back of your head, but ये number continuously change हो सकता है क्योंकि आप ज़्यादा question देखोगे तो यू माइट फील कि हाँ मैंने शायद पहले सोचा था ईजी है बट अभी पेपर डिफिकल्ट निकल रहा है, या फिर पहले सोचा था डिफिकल्ट है अभी पेपर ईजी निकल रहा है, राइट? सो ऑन दैट बेसिस योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वुड ऑल्सो चेंज. Let's say you have to plan your attempts accordingly, but that should not be sack to sack. Now this is very very important. उस पर बैठ नहीं जाना है कि हाँ मैंने वीडियो देखा था अगर डिफिकल्ट पेपर लगता है तो 15 क्वेश्चन सॉल्व करें. नॉट एट ऑल. दैट शुड कंटिन्यूसली चेंज द मोर यू सॉल्व क्वेश्चंस, तब आपको पता चलेगा, है ना? एंड ऑब्वियसली जितना ज़्यादा आप सॉल्व कर सकते हो उतना ज़्यादा बेहतर है आपके लिए. सो फोकस ऑन सॉल्विंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ना हाउ डू यू डू दैट? हाउ डू यू सॉल्व द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन? मैं तो आराम से बोल सकता हूँ किसी को भी कि भाई 34 में 34 ही सॉल्व कर देना, बट वो करना डिफिकल्ट हो जाता है. यू शुड हैव अ वेरी प्रॉपर अप्रोच एंड स्ट्रैटेजी टू डू दैट. वॉट इज द स्ट्रैटेजी? द स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल. टेक 1 सेक्शनल इन 3 स्टेजेस. ठीक है. क्वांट में आप सबसे अच्छे से समझोगे, बट वॉट डू यू नीड टू डू इन वर्बल? वर्बल एबिलिटी में जस्ट स्किम, थोड़ा सा समझ लो फर्स्ट 2-3 लाइन्स रीडिंग ऑफ रीडिंग ईच पैसेज. अंडरस्टैंड वॉट इज़ द लेवल ऑफ द आरसी. अगर कोई आरसी आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे डोमेन का नहीं है, आर्ट कल्चर सोशियोलॉजी लेके कुछ बोल रहा है, सो लीव दैट आउट इन द फर्स्ट गो. डू द आरसीज विच यू फील यू कैन गेट अ गुड स्कोर इन. ठीक है. सो फर्स्ट डू दैट. जो भी पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी क्वेश्चंस होते हैं दे आर अ बिट ईजियर देन पैरा जम्बल्स एंड ऑड वन आउट. सो गो एंड डू दोज फर्स्ट. देन गो टू द अदर आरसीज दैट यू हैव, बिकॉज आरसीज सबसे ज़्यादा सॉल्व करनी पड़ेंगी, राइट? 24 क्वेश्चंस ऑफ द 34, so you have to solve a lot of RCs. So then go to the question जहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब the ones that you have not been attempted, that you have not attempted in the first section. Right, solve those RCs and then you can go to the parajumbles. After that, after you're done with this, you would be seeing that आपके पास around 10-12 या 8 मिनट ही बचा हुआ है. In that what you need to do is, शायद you would be leaving out 1 RC या ऐसा कुछ होगा, so try to do around 1-2-3 questions अगर कर पाते हो तो. ठीक है. Let's take 1 RC में ये वाला क्वेश्चन ईजी लग रहा है, so let me go to the passage and see, finding out this information seems easy, so I'll go to the passage, find out that information and mark the answer. Almost synonymous to what we tell our students to do in LRDI as well. ठीक है. So this is what you need to do in the verbal ability section. What do you need to do in the DLR section? पहले का जो 5 से 6 मिनट है, do not attempt any set. Right? For the first 5-6 minutes you should look at the set, understand if it's solvable, मतलब if it's easy, if it's medium or if it's difficult, और मतलब करना है या फिर छोड़ देना है. Right? In the first 6 minutes you need to scout for all the 8 sets. 2-3 सेट आपको दिख जाएंगे कि हाँ ये वाला इजी लग रहा है, उसको मार्क करके रख दो. ठीक है. सॉल्व द 1 to 2 ईजी सेट्स फर्स्ट, वो आपका टारगेट होना चाहिए. देखो DLR पे 8 सेट मिलेगा आपको. योर टारगेट शुड बी सॉल्विंग द ईजीएस्ट ऑफ द सेट्स दैट यू गेट इन द एग्जाम. डिफिकल्ट सेट सॉल्व करके कोई फ़ायदा नहीं होता है. यू एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू ऑल्सो एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स. Right, so ensure that you understand which are the easy sets and then medium sets कौन से हैं, time taking sets कौन से हैं, उसको second approach में करना है, 2 to 3 sets. and then if you have let's say 5-6 minutes, कोई एक set या 2 set जहाँ पे आपको लग रहा है हाँ एक question उसमें set में से मैं कर सकता हूँ, let's say it's a long set but this question seems easy, I don't have to put that much effort, so go to that and solve that one out. That's the next thing you want to do.
अगेन इट वुड कम्प्लीटली डिपेंड कितना सेट आप सॉल्व करोगे, वो कम्प्लीटली डिपेंड करेगा लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ द पेपर में, जो कि आपको पहले ही 6-5 मिनट पे पता चल जाएगा. वॉट अबाउट क्वान्टिटेटिव एबिलिटी? क्वांट सेक्शन में क्या करोगे, यहाँ पे कोई स्काउटिंग टाइम नहीं चाहिए. आई डोंट हैव टू रीड क्वेश्चंस वन बाय वन. ठीक है, व्हाट यू नीड टू डू इज पहले का जो 20 to 25 मिनट्स होगा, योर टारगेट शुड बी गोइंग फ्रॉम क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 34. सारे के सारे क्वेश्चंस देख लेना है. सिर्फ देखना ही नहीं है, जो वन लाइनर्स क्वेश्चंस हैं जो आपको दिखने में लगता है कि हाँ ये तो 1 मिनट में मैं बना लूँगा, उसको सॉल्व कर दो. ठीक है, यू वुड गेट समवेयर अराउंड 6-7 क्वेश्चंस इफ द पेपर इज़ डिफिकल्ट. ओनली 6 to 7 क्वेश्चंस मिलेगा आपको ऐसे, जबकि पेपर डिफिकल्ट होगा. द नंबर वुड इंक्रीज विथ लोअरिंग ऑफ डिफिकल्टी इन द पेपर. नाउ that first 20 minutes or 25 minutes has passed, then again come to question number 1. अभी आप क्या करोगे, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा लेंदी आपको लगा, जो आपने पहले मार्क कर रखा था 25 मिनट पे, वहाँ पे आप जाओगे, यू विल सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस. राइट, अगेन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वुड डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी. एंड लास्ट के जो 10-15 मिनट बचेंगे ये करने के बाद, वहाँ पे आपको जो करना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ अ गेम चेंजर. The last 10 to 15 minutes you should target solving around 3-4 questions. That's around 4 minutes per question. ठीक है, 3-4 क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे सॉल्व कर लेते हो, जो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेंदी जो भी है, अगर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हो, आपको एक बूस्ट मिलता है आपके स्कोर पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So what are the major things that you need to keep in mind? First, make sectional targets. ऐसा सोच के मत चलना कि 130 लाना है. वर्बल देखा, वर्बल इजी लगा, चलो ठीक है इसमें मैं ट्राई कर सकता हूँ 50-55 लाने का. बैक ऑफ द माइंड में आप सोच सकते हो. DILR डिफिकल्ट है, ठीक है, आई ट्राई टू सॉल्व अराउंड 3.5-4 सेट्स. ऐसे करके सोचिए. ठीक है, क्वांट इजी है तो लेट मी ट्राई सॉल्विंग अराउंड 25 क्वेश्चंस, ऐसा करके सोचना. ठीक है, सो योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स शुड डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द सेक्शनल एंड नॉट द एंटायर मॉक. नेक्स्ट, इफ़ यू आर स्मार्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू आर स्मार्ट यू विल सॉल्व द ईजीएस्ट क्वेश्चंस. ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारे क्वेश्चन देखने पड़ेंगे उसके लिए, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ माइन कम एंड से मी कि सर 1 घंटा बीत गया, आई कुड नॉट मूव बियॉन्ड क्वेश्चन नंबर 20 या 23, उसके बाद मैं देख ही नहीं पाया. यार अगर आप देखते ही नहीं हो तो आपको पता नहीं चलेगा ना विच आर द ईजी क्वेश्चंस. सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, राइट. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिक एग्जाम. द एग्जाम इज स्ट्रेटेजिक. इट्स नॉट दैट. तो जो क्वेश्चन सेटर है वो भी देखना चाहते हैं कि आप कैसे इसको पूरा मैनेज करते हो, राइट. दे विल चेक योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड योर इवैल्यूएशन स्किल्स. द मोमेंट यू सी अ क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, लीव दैट. कुछ फ़ायदा नहीं है उस क्वेश्चन को करने पे, छोड़ने पे ज़्यादा फ़ायदा है ना. सो दिस यू नीड टू इनकलकेट विद इन योर सेल्फ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी. वन वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर माई एंड, if you want to become a manager, now all of you are taking this exam to become managers, right? If you want to become a manager, you have to do it right from today. ऐसा नहीं हो सकता कि आप MBA करोगे, उसके बाद जॉब में जाओगे एंड अचानक से you'll see कुछ मैजिक आ जाएगा आपके बीच में and you'll start acting like a manager. No, that doesn't happen. So you have to become mature, you have to have a very good logic, you have to have a presence of mind, तभी आप अच्छा मैनेजर बनोगे, otherwise it becomes very difficult for you to do that. Right, so please ensure all these things and I hope you would get a very good score in the next mock. मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, हर mock को 3 सेक्शनल से देखो एंड हर सेक्शन को 3 स्टेजेस में दो, तभी. सो 9 stages would be your strategy from today onwards. Take 2-3 mocks ऐसा स्ट्रैटेजी अप्लाई करके देखो. आई होप, मैंने पूरा भरोसा है मुझको कि आपका मॉक का जो स्कोर है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा. 2-3 मॉक लेने के बाद अगर स्कोर इम्प्रूव करते हैं, डू कम बैक हियर एंड कमेंट डाउन बिलो, ताकि बच्चों को भी लगे कि हाँ ये जो स्ट्रैटेजी है, दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी दैट यू पीपल कैन फॉलो इन योर मॉक्स. ठीक है, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माई एंड. इफ़ यू नीड एनी मोर वीडियोज़ ऑन दीज टाइप्स यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो एंड प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना. ऑल्सो फॉलो अस ओवर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड स्नैपचैट @LearnForExam. हैव अ वेरी गुड डे अहेड गाइज एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. बाय बाय.